Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to talk about Pisces Ascendant and how the month of October 22 is going to pan out for the Pisces Ascendant people. We will first start with the Ascendant Lord. Ascendant Lord Jupiter is passing through the first house for the Pisces Ascendant people and it is transitioning through its own house. So the Ascendant Lord transitioning through first house ensures that the Pisces Ascendant people are going to see an excellent time till April 2023. This transitioning Jupiter is also going to aspect three houses, fifth, seventh, and ninth house. And as we all know, Jupiter's aspect is always considered to be very, very beneficial. Jupiter is going to aspect the seventh house and is going to provide an opportunity to start your own venture or business at this point of time. And at the same time, it is also going to aspect the fifth house. So, people involved in education, any kind of an artistic work and speculation will see a good time in the month of October. However, for people who are involved in speculation, the best time will only be till the middle of the month, and the suggestion would be to liquidate all your holdings and get out of the market after October reaches to half of its position, that is till 15th of October. One should avoid engaging in any kind of a speculation in the second half of October because that will turn out to be a disastrous proposition for the Pisces ascendant people. Now, this transitioning Jupiter also means that it is going to provide you with the ability to have a kid. And if at all you are planning for a kid, then time till April 23 is going to be very, very fruitful for you. We will also look at other planets one by one. So, Sun is the Lord of sixth house of service, debts, and enemies, going to transition through the seventh house till 15th of October. After this, it will enter into the eighth house where it is going to be in its debilitated state in the Libra sign. So what will happen is that once Sun enters into this house, after a couple of days, Venus will also enter and it will cancel the debilitation of Sun because Sun will be in the debilitation sign, but Venus will be in its own sign. So Venus will cause cancellation of the debilitation of Sun. So Sun will also start to provide good result. Having said so, Sun is the sixth house lord for Pisces ascendant. So sixth house lord passing through the eighth house would mean that starting from 19th of October, people need to be very, very careful about their health and they need to watch out for their health till the time Sun is sitting here. So time frame from 18th of October to 15th of November is considered very treacherous as far as health is concerned. Prior to this moment, when Sun is sitting here till 15th of October, it will have the capability to provide you the recognition in the public sphere because Jupiter will also be aspecting this seventh house and three planets combined together here, Mercury in its own sign, cancelling the debilitation of Venus, and Sun being the friend of Mercury is going to create an extremely powerful combination for you to rise in the public sphere and get recognition. If you are in job, then the first half of October will be very good for you, especially the time between 11th, 12th and 13th of October will be very, very fruitful for you as far as the service is concerned. Mercury is going to be in its own house. So, seventh house lord in the seventh house with Jupiter aspecting will continue to boost the significations of the seventh house. So, you are going to enjoy the company of your spouse if you are married. And this is also a very fruitful time for people who are single and are looking for a relationship or people who are engaged and are planning to get married. So any kind of a time spent with your companion will prove to be very, very good for the Pisces ascendant people. Rahu is transitioning through the second house. So Rahu, whenever it passes through second house, it creates confusion with your family members. It brings a kind of curtness in your speech. More than that, people speak in such a way that their family members get hurt in the process without this individual realizing that this has happened. So you need to be extremely cautious in terms of what you speak, when you speak, and who do you speak with, because your speech may act as a big deterrent as far as your relationship with your family is concerned. This Rahu also has the ability to give you weird kind of a mouth and gum diseases, and people contract some very weird diseases when Rahu pass through their second house, and this happens within their palate, tongue, and mouth. So all the areas that are related to your speech they get impacted when Rahu passes from this position.
Ketu, on the other hand, in the eighth house will continue to cause disenchantment with the family members of your spouse, and you should be very cautious when you are dealing with those family members. Otherwise, you may unnecessarily get tangled into some kind of a controversies during this Ketu's transit from the eighth house. Venus is the lord of eighth and the third house of effort for you, and this is going to remain in the seventh house till 18th of October. After this, Venus will move to eighth house on 19th of October. So when Venus moves to the eighth house, it is going to cancel the debilitation of Sun, and it also has the advantage of giving you easy money from others because the eighth house lord will be in the eighth house. So you can check your own birth chart if you have a benefic planet placed here. So benefic planet would mean naturally benefic planet like Venus or Jupiter or Moon, although Moon is considered to be a slightly lesser degree as far as giving free money is concerned. So whenever you have benefic planets here, these planets have the ability to give you easy money. You can earn money from your opposition, or you can even earn money from your spouse or business partner. And whatever benefic planets are placed here, they will give you money according to their own nature. So you can look at your own birth charts for this. But in this case, if you are undergoing MD or AD of Venus, then you will see a free inflow of money during the time Venus is posited here. So from 19th of October to 23rd of November, you may get an opportunity to earn easy money provided Venus is currently featuring in your MD or in your AD. Now, there are also certain dates when people need to be cautious. These are the dates when Moon passes through your 6th, 8th, and 12th house. So, for the Pisces ascendant people, the dates where you need to be careful are 6th and 7th of October, 20, 21, and 22nd of October. These are the three dates when Moon will pass through your 6th house, and you need to be very careful for your health, and 25th and 26th October. So these are the 7 dates when you need to be very cautious for, and you should avoid taking any big decisions. Overall, it's a satisfactory month for Pisces ascendant because the ascendant lord passing through ascendant itself creates an excellent position. The first half of October will be more beneficial for you, especially if you have your own business or you are in a public dealing atmosphere. So if you're a politician or a social worker, or you are in a job or a business which requires you to speak to a lot of people, gives you the public visibility, then the first 15 months will be really good for you. But the last 15 days, people should be very careful about their health. Otherwise, it's a good time frame because Jupiter is passing through the ascendant and is protecting your three houses of progeny, marriage or business partner, and your luck. So that's the summary for the Pisces ascendant people for the month of October. If you have liked my video, I would request you to subscribe to my channel, and thank you very much for watching this video. नमस्ते दोस्तों, मैं प्रसाद जोशी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानने का प्रयत्न कर रहे हैं कि मीन लग्न वालों के लिए अक्टूबर 2022 का महीना कैसे निकलेगा। सबसे पहले हम लोग लग्नेश की बात करते हैं। लग्नेश गुरु अभी वक्री अवस्था में चल रहे हैं और प्रथम भाव से गुजर गए हैं। देखिए, गुरु का प्रथम भाव से गुजरना, जब भी कभी लग्नेश लग्न से गुजरता है तो ये बहुत अच्छी स्थिति कहलाती है। यहाँ पे गुरु तो लग्न स्वामी ही है, इसके अलावा वो कर्मेश का भी स्वामी है। तो कर्मेश का भी प्रथम भाव से जाना, यानी कि ये काफी हद तक आप अपने आप को आपके काम में कैसे पोर्ट्रे करते हैं, अपनी इमेज कैसे बनाते हैं, ये यहाँ पे सबसे ज्यादा मैटर करता है। अगर आपको अपने कार्यस्थल पे चमकना है तो यहाँ पे गुरु आपके पंचम, सप्तम और नवम भावों को देखेगा, और गुरु की दृष्टि हमेशा ही प्रोटेक्टिव नेचर की कहलाती है। ये जिन भी भावों को देखता है उनकी रक्षा करता है। तो यहाँ पे गुरु पंचम भाव से को देख के आपके बच्चों की भी सुरक्षा करेगा अगर वो हैं, लेकिन यहाँ से जाता हुआ गुरु अप्रैल 2023 तक आपको संतति देने की भी क्षमता रखता है। तो अगर आप ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। यहाँ पे गुरु सातवीं दृष्टि से आपके पति पत्नी या आपके बिजनेस पार्टनर या बिजनेस के हाउस को भी देखेंगे। तो यहाँ पे आपको 1 से लेके 15 अक्टूबर तक पब्लिक स्फीयर में मान सम्मान मिलने का या आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने का मौका देगा ये गुरु का दृष्टि। क्योंकि इसके अलावा सप्तमेश बुध भी अपने ही भाव से भ्रमण कर रहे हैं और सूर्य शुक्र का नीच भंग कर रहे हैं। तो इसकी वजह से सप्तम भाव से जुड़े हुए रिजल्ट आपको बहुत तीव्रता से अनुभव करने को मिलेंगे अक्टूबर के महीने में। यहाँ पर जितने भी लोग अपना बिजनेस चालू करना चाह रहे हैं उनके लिए अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा है।
और जैसा मैंने पहले बताया, ये गुरु आपको संतति देने की भी क्षमता रखता है। और जितने भी लोग पंचम भाव से जुड़े हुए व्यवसाय में हैं, अगर आप टीचिंग में हैं, एजुकेशन में है, प्रोफेशनल कोचिंग या इस तरह के किसी बिजनेस में, या फिर आप आर्टिस्ट हैं, पेंटर्स हो गए, स्कल्पचर्स हो गए, उनके लिए ये अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप सट्टेबाजी में हैं तो 1 से 15 अक्टूबर का समय तो आपके लिए अच्छा है। लेकिन अगर आप छोटे इन्वेस्टर हैं, जिन्हें हम रिटेल इन्वेस्टर्स कहते हैं, तो ये अच्छा रहेगा कि आप 15 अक्टूबर के बाद स्टॉक मार्केट को तिलांजलि दे दें, क्योंकि सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर आपके लिए बहुत मुश्किल साबित होगा अगर आप प्योरली स्पेक्यूलेशन की दृष्टि से देखें तो यहाँ पे पहले 15 दिन अच्छे हैं, लेकिन उसके बाद का समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यहाँ पे सूर्य छठवें भाव के स्वामी बनते हैं। छठवें भाव का स्वामी सूर्य 16 अक्टूबर तक सप्तम भाव में बैठा रहेगा, और यहाँ पे आपको वो मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ाने का काम करेगा। 15 अक्टूबर के बाद सूर्य अपने नीच अवस्था में चले जाएंगे अष्टम भाव में। हालांकि शुक्र 2 दिन बाद यहाँ पे आके सूर्य का नीच भंग कर देंगे, लेकिन फिर भी चूंकि सूर्य छठवें भाव का स्वामी है, तो छठवें भाव के स्वामी का अष्टम भाव से गुजरना ये हेल्थ की दृष्टि से बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहा जा सकता है। और जितने भी लोग अपनी हेल्थ से ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं, या फिर उनकी उम्र 50-55 के पार है, उन लोगों को इस समय में अपनी सेहत को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी। 19 अक्टूबर से लेकर 23 नवंबर तक आप एक अपना रूटीन बना के रखिए और अपनी हेल्थ का बिल्कुल ध्यान रखिए। थोड़ी सी भी अगर आप कोताही करेंगे तो ये आपके ऊपर बैकफायर हो सकती है। अगर आप जॉब्स में हैं, क्योंकि छठवें भाव से जॉब या सर्विस भी देखी जाती है, तो 15 अक्टूबर तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। खास करके 11 अक्टूबर से 13 अक्टूबर 3 दिन आपके लिए ऐसे रहेंगे जहां पे आप अपने कार्यस्थल पर चमक सकते हैं। बुध सप्तम भाव के स्वामी और चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं आप लोगों के लिए, और सप्तमेश का सप्तम से जाना यानी कि आपके सप्तम भाव से जुड़ी हुई चीजों को एकदम से बूस्ट करता है। यानी आपके आपके पति और पत्नी के साथ बहुत अच्छा समय गुजरेगा अक्टूबर के महीने में। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, सिंगल हैं, या आप रिलेशनशिप में हैं, शादी करने का देख रहे हैं, तो भी एक गुरु की दृष्टि आपके सप्तम भाव पे पड़ेगी और अप्रैल 2023 तक ये मौका बनाती रहेगी। अक्टूबर में ये मौका और भी तीव्रता से बनता है, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी भी सप्तम में ही है। तो जितनी भी शादी से रिलेटेड, आपके पति पत्नी से जुड़े रिलेशनशिप से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, उन सब में आपका बहुत अच्छा समय बीतेगा। अभी राहु आपके द्वितीय भाव से गुजरेंगे, तो राहु एक छिद्र बिंदु कहलाता है। ये कोई ग्रह नहीं है, लेकिन ये पृथ्वी के सबसे पास होने की वजह से आपके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है राहु का। तो यहाँ पे जब भी राहु द्वितीय भाव से गुजरता है, राहु का काम है गलत फहमियां पैदा करना, मृग तृष्णा जिसको कहते हैं, वो एक क्रिएट करना, मिराज इल्यूजन बनाना। तो यहाँ पे अपने परिवार वालों के साथ आपको सावधानी से डील करना पड़ेगा, क्योंकि आपके और आपके परिवार में ये राहु गलत फहमियां क्रिएट कर सकता है आपकी स्पीच के थ्रू, क्योंकि द्वितीय भाव से आपकी स्पीच देखी जाती है। तो कई बार आप ऐसी बातें कर देंगे जिसकी आपके परिवार वालों को बहुत गहरी चोट लग जाएगी, और कई बार आपकी बातें इस तरीके से भी ली जा सकती हैं कि आपको लगेगा अरे ये तो मैंने बोला ही नहीं था। तो इसीलिए आप किससे कब क्या बात करते हैं, इसके प्रति आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा जब भी कभी ये राहु द्वितीय भाव से निकलेगा तब। और अभी ये समय है जब आप अपनी वाणी पे ध्यान दीजिए, जब भी आप अपने परिवार वालों के साथ बात करते हैं। कुछ भी अगर आपको नया तरीके का इन्वेस्टमेंट करने को मिलता है, तो उससे भी किनारा कीजिए, क्योंकि ये राहु यहाँ पे बैठ के व्यक्ति के वेल्थ पर भी, खास करके जो स्वयं का कमाया हुआ धन होता है, उसमें डेंट लगाने का काम करता है। अभी 18 अक्टूबर के बाद शुक्र यहाँ पर आ जाएंगे अष्टम भाव में, तो राहु और शुक्र का ऑपोजिशन बनेगा। तो शुक्र और राहु दोनों मिलके हमारा क्रिप्टो करेंसी भी बनाते हैं, तो उसमें भी आपको मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे 18 अक्टूबर के बाद। तो कोई भी नया इन्वेस्टमेंट करना टालिए इस समय में, क्योंकि ये राहु आपका इन्वेस्टमेंट को खड्डे में ले जाने की क्षमता रखता है। यहाँ पे बैठा हुआ राहु ना सिर्फ आपके स्पीच के थ्रू लोगों में गलतफहमियां पैदा करने का काम करता है, लेकिन ये आपको जितनी भी आपके तालू से, जीभ से या गले से संबंधित चीजें हैं, जिससे भी आपकी वाणी जुड़ी हुई है, उसमें ऊटपटांग तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। यानी लोगों के गम्स में प्रॉब्लम होती है, उनको पायरिया जैसी बीमारियां होती हैं, या फिर कुछ इस तरह की वियर्ड चीजें होती हैं जिसके बारे में उन्होंने सोचा नहीं होता। तो ये यहाँ पे राहु इस तरह की परेशानियां देता है व्यक्ति को। केतु यहाँ पे अष्टम भाव में बैठ के अष्टम भाव से जुड़ी हुई चीजों से काटेगा। तो इस समय में आपको, अगर आप कोई इनहेरिटेंस की बातें वगैरह सोच रहे हैं, तो ये केतु आपको कोई परिणाम मिलने नहीं देगा यहाँ पे। इसके अलावा ये आपको आपके स्पाउस के
परिवार से भी काटने का काम करेगा, क्योंकि द्वितीय भाव से आपके स्पाउस की वेल्थ या उसके फैमिली मेंबर्स देखे जाते हैं, तो इनसे भी आप कटाव महसूस करेंगे जब तक केतु यहाँ बैठा हुआ है। शुक्र अष्टम द्वितीय भाव का स्वामी बनता है आप लोगों के लिए, और ये अपने ही भाव में चला जाएगा 19 अक्टूबर के बाद, और यहाँ बैठ के ये सूर्य का नीच भंग करेगा। तो देखिए शुक्र एक मृदु ग्रह है, तो जब भी कभी अष्टम भाव से मृदु ग्रह निकलते हैं, चाहे वो शुक्र है, गुरु है, या थोड़े छोटे डिग्री तक आप उसमें चंद्र को भी गिन सकते हैं, तो इन ग्रहों में अष्टम भाव से गुजरते समय आपको फ्री का पैसा दिलाने की क्षमता होती है, या आपको एक इजी मनी देते हैं। तो जिनकी भी कुंडली में शुक्र, चंद्र या गुरु अष्टम भाव में बैठे होते हैं, उनको हमेशा दूसरों से आसानी से धन मिलता है। अब आप कैसे भी कमाएं, स्पेक्यूलेशन से कमाते हैं, या आपको आपके पत्नी के परिवार से पैसा मिल जाता है, या आपका ऑपोजिशन से आपको पैसा मिल जाता है, वो सिग्निफिकेशंस अलग अलग हो सकते हैं, और वो इस बात पे निर्भर करते हैं कि अष्टम भाव में बैठा हुआ ग्रह कौन सा है। लेकिन जितने ज्यादा ग्रह आपके अष्टम भाव में होंगे जन्म कुंडली में, उतने ही आपको इजीली पैसा मिलेगा दूसरों का। और ये पैसा आपको तब तब मिलेगा जब अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह आपकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में दिखाई देंगे। तो यहाँ पे आपको शुक्र से संबंधित सिग्निफिकेटर्स, और शुक्र से फीमेल्स देखी जाती हैं, तो आपको आपकी स्पाउस के थ्रू, या इवन आपके घर में जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनके भी थ्रू इस समय में पैसे की आगमन हो सकता है आपके लिए इस समय में। अब हर महीने में ऐसे कुछ दिन होते हैं जब व्यक्ति को सावधान रहना पड़ता है, ये मैं हमेशा बताता हूँ, क्योंकि जब भी चंद्र आपके 6, 8, 12 से गुजरता है, तो व्यक्ति के जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी होती है उसमें फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे आपके लिए जो दिन है जिनमें आपको सावधानी बरतनी है, वो है 6 और 7 अक्टूबर, 20, 21 और 22 अक्टूबर, और 25 और 26 अक्टूबर। इन 7 दिनों में आप सावधान रहिए। और 20, 21, 22 अक्टूबर को आपको अपनी हेल्थ के प्रति और ज़्यादा कॉशियस रहना है। वैसे तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जब भी आपका सन यहाँ पे मूव कर रहा है, यानी कि 16 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर तक, तब तक तो आपको ध्यान रखना ही है अपनी सेहत का। तो अगर आप कुल मिला के देखेंगे तो अच्छा समय है मीन लग्न वालों के लिए, क्योंकि लग्नेश लग्न से ही गुजर रहे हैं, और ये जो पोजीशन आपकी बन रही है सप्तम भाव में 3 ग्रह 15 अक्टूबर तक, ये भी आपको सामाजिक या आपके वर्क प्लेस पे कुछ मान सम्मान दिलाने का कार्य कर सकते हैं, और आपका आपके पति या पत्नी के साथ भी समय काफ़ी अच्छा गुजरेगा इस समय में। और ये आपकी समरी है अक्टूबर के लिए। तो आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो देखने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।